بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے ظالم اور شفاق ترین حکمران کی نسل میں سے ایک ظالم حکمران پیدا ہوا جس کو لوگ ہلاکو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعد تاریخ میں ظالم ترین حکمرانوں میں نام پانے والا یہ دوسرا ظالم انسان تھا جس کو تاریخ ہلاکو خان کے نام سے جانتی ہے۔ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس جگہ سے ہلاکو خان گزرتا تھا وہاں کا راستہ کئی برسوں تک گواہی دیتا تھا کہ یہاں سے ہلاکو خان گزر گیا ہے، کیونکہ منگول جہاں سے گزرتے تباہی اور بربادی کر جاتے۔ ہلاکو خان 15 اکتوبر 1218 کو پیدا ہوا۔ وہ تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ اہل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ ہوشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کر دیا۔ ہلاکو خان جیسے ظالم ترین حکمران کے ساتھ ان کے وزیروں کا رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ ہلاکو خان کے ساتھ رہنے کے لیے عقل مندی، حاضر دماغی اور وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کب گردن کٹ جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذہانت اور جرأت اظہار انسان کو کئی مصائب سے بچا لیتی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے مسلمان سائنسدان کا ہے جس نے 7ویں صدی میں ریاضی کی کتابیں لکھ کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ خواجہ نصیر الدین توسا تھے جو طوس ایران میں پیدا ہوئے، لیکن حاسدین ان کی لیاقت سے اس قدر خائف تھے کہ انہیں بدترین مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ ہلاکو خان نے ان کی قدر افزائی کی اور مالیات کا مشیر بھی بنایا۔ علامہ توسا کی اہم ترین کتاب شکل القطع ہے جس نے مثلثات کے حساب کو علم فلک سے الگ کیا تھا۔ نصیر الدین توسا کی ہلاکو خان کے دربار میں بڑی عزت تھی۔ وہاں توسا کا ایک حاسد بھی تھا جو ہر وقت توسا کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ اتفاقاً انہی دنوں ہلاکو کی والدہ بیمار تھی، وہ تندرست نہ ہو سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی حاسد نے ہلاکو خان سے کہا، جہاں پناہ مرنے والے سے منکر نکیر قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ توسا ایک عالم فاضل شخص ہے، توسا کو والدہ محترمہ کے ساتھ دفن کرا دیا جائے تاکہ یہ والدہ صاحبہ کی طرف سے منکر نکیر کو سوالوں کے صحیح جواب دے سکے۔ ہلاکو خان نے توسا سے اس مشورے کا ذکر کیا۔ توسا نے کہا، بے شک قبر میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر مجھے آپ اپنے لیے مخصوص رکھیں، کیونکہ ایک روز آپ نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ اس مشورہ گیر عالم کو دفن فرما دے۔ توسا کی بات ہلاکو خان کے من کو لگی۔ اسی طرح توسا کے مشورے سے اتفاق کیا اور توسا کے حاسد کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کرا دیا۔ ایک دفعہ مسلمان غیرت مند ملکہ کو جب قیدی بنا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ پھر مدتوں تک چنگیز خان کی نسل کے دلوں پر مسلمان عورتوں کی غیرت کا دبدبہ چھایا رہا۔ جنگوں میں فاتح مفتوح بادشاہوں کی عورتوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر بہت سی غیرت مند خواتین جان پر کھیل کر اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ تاریخی کتاب طبقات الصافیہ میں درج ہے کہ جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم باللہ ع نے اس وقت قتل کیا جب وہ تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ خلیفہ کے قتل کے بعد ہلاکو خان ملکہ کو لے جانے لگا تو ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈی کے کان میں کوئی بات کہی۔ یہ بات کہنے کے بعد ملکہ مطمئن ہو گئی۔ جب وہ اندر ہلاکو خان کے سامنے پہنچی تو اسے کہا، اے جابر بادشاہ، سامنے خلیفہ کی تلوار پڑی ہے۔ یہ کوئی عام تلوار نہیں، بلکہ اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب تک خلیفہ اس سے
वार न करे, ये किसी को जख्म नहीं पहुंचा सकती है, कोई और इससे किसी को जख्म भी नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो इसका तजर्बा भी आपके सामने किए देती हूँ। हलाकू खान मुतज्जिब हुआ, इसने अपने शौक का इजहार किया। मलका ने इस लौंडी को इशारा किया और इसने एक भरपूर वार मलका पर कर दिया, जिससे इस मुकद्दस खातून के 2 टुकड़े हो गए और इस तरह अपनी जान देकर अपनी इज्जत और असमत बचा ली। हलाकू खान को इस नाकामी पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। जान देकर अपनी हुर्मत की हिफाजत करने का ये वाकया मुद्दतों तक चंगेज खान की नस्ल के दिलों पर छाया रहा। यहाँ 3 वाकयात का जिक्र जिसमें हमारे लिए इबरतो नसीहत का बेपनाह जखीरा है। पहला वाकया तो यह है कि बगदाद को फतह करने के बाद हलाकू खान ने अपने साथियों से मुस्तासम बिल्ला के कत्ल का मशवरा किया, तो सब ने यही मशवरा दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। मगर 2 नाम निहाद मुसलमान और गद्दार यानी नसीरुद्दीन तोसा और अलकमी, जो हलाकू खान के दरबार में मौजूद थे, इन्होंने यह मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आप इस खलीफा के गंदे खून से अपनी तलवार को नापाक ना करें, बल्कि उसको चमड़े में लपेट कर कुचल दिया जाए। हलाकू खान ने इस काम की जिम्मेदारी अलकमी के सपुर्द की, जो कि मुस्तासम का वजीर रह चुका था। अलकमी ने अपने आका को चमड़े में लपेट कर एक सतून से बांधा, फिर इस पर लातों की बारिश कर दी, यहां तक कि इसका दम निकल गया। फिर इस पर भी बस नहीं की, बल्कि इसके बाद इसकी लाश जमीन पर डाल दी और तातारियों को इस लाश पर उछलने कूदने और इसे कुचलने का हुक्म दिया। दूसरा वाकया यह है कि जब तातारी आलम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा रहे थे और मुसलमानों का खून बेदरीग बहा रहे थे, तो इमाम इब्ने तैमियार रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को इनके खिलाफ जहाद करने के लिए उबारा। मगर कई फुकहा और उलमा का इसके बारे में इख्तलाफ हो गया कि तातारियों के खिलाफ जंग करना जायज है या नहीं। तातारी तबाही मचा रहे थे और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तीसरा वाकया यह है कि खलीफा ने कई खुफिया जमीन दोज हौज बना रखे थे, जिनमें जवाहरात और अशरफियों की थैलियां भरी हुई थी। हलाकू खान ने ये सब खजाने अपने कब्जे में ले लिए और खलीफा को नजरबंद कर दिया। खलीफा को सख्त भूख लगी, इसने खाना मांगा तो हलाकू खान ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि जवाहरात का एक तश्त भरकर खलीफा के सामने ले जाओ और कहो कि ये खाओ। चुनांचे ऐसे ही किया गया। खलीफा ने कहा, मैं इनको कैसे खा सकता हूँ, मेरे लिए तो रोटी लाओ। हलाकू खान ने इसे बड़ी इबरत आमेज बात कही, कहा कि जिस चीज को तुम नहीं खा सकते, इसको हौजों में भरकर क्यों रखा है, इसे अपनी औलाद यानी लाखों मुसलमान की जान बचाने के लिए क्यों ना खर्च किया और सिपाहियों को क्यों ना दिया, ताकि वो तुम्हारी तरफ से बहादुरी के साथ लड़ते और तुम्हारा मुल्क बचाते। यहाँ एक बात जो जहन में आती है कि दुनिया के इतने बड़े जालिम हुक्मरान, जो कि एक सिपाही के कत्ल का बदला लेने के लिए 14 लाख कत्ल कर देते थे, आखिर ऐसे सफाक और जालिम हुक्मरान की मौत कैसे हुई। दोस्तों, एक दफा हलाकू खान अपने घोड़े पर सवार अपने सिपाहियों के साथ एक बाजार से गुजर रहा था कि देखा कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। हलाकू खान ने देखा कि मैंने इतने सारे लोगों को मरवा दिया, लेकिन अभी तक इतने मुसलमान जिंदा हैं। हलाकू खान ने इतने इंसानों को मरवाया कि एक ही वक्त में 4 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। जब लोगों ने हलाकू खान के जुल्म के बारे में सुनकर जमीन 2 सुरंगें बनाई और इनमें छुप गए ताकि हलाकू खान के गजब से बच सके। लेकिन बदकिस्मती से जब हलाकू खान के जासूसों ने यह खबर हलाकू खान तक पहुंचाई तो हलाकू खान ने तमाम दरियाओं और नहरों के बंद तुड़वा दिए और पानी इन सुरंगों में दाखिल हो गया और 4 लाख मुसलमान पानी में डूब कर मर गए। जब हलाकू खान ने देखा कि बाजार में इतने सारे लोग अभी तक खरीदारी कर रहे हैं, तो इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाजार के तमाम लोगों को कतारों में खड़ा करते जाओ और सब की गर्दनें काटते जाओ। बाजार में जितने लोग थे, इनके तकरीबन 4-5 कतारें बनी। इनमें एक बूढ़ा भी मौजूद था जो कि पहली सफ में खड़ा था। जब हलाकू खान के सिपाही मुसलमानों की गर्दनें काट रहे थे, तो जब हलाकू खान के सिपाही ने पहली सफ में खड़े मुसलमानों की गर्दनें काटी तो बूढ़ा आदमी दूसरी सफ में चला गया। हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि ये बूढ़ा क्या सोचकर पीछे भाग रहा है, क्या ये मेरे जुल्म से बच जाएगा। अब जब दूसरी लाइन में खड़े तमाम लोगों की गर्दनें कट गईं तो वो बूढ़ा तीसरी लाइन में चला गया और इसी तरह वो बूढ़ा आखिरी कतार में आखिरी जगह पर खड़ा हो गया। हलाकू खान ने इससे सवाल पूछा, ऐ बूढ़े नौजवान, क्या तुम में इतनी ताकत है, तुम पीछे क्यों भाग रहे हो, क्या तुम मेरे गजब से बच सकते हो। तो इसने कहा कि जब तक मेरी सांसें लिखी हैं वो मैं लेकर रहूंगा,
मेरी मौत की ताकत मेरे रब के पास है। हलाकू खान ने फिर हुक्म दिया कि इस कतार में खड़े तमाम इस बूढ़े समेत लोगों को कत्ल कर दो। जल्लाद तमाम लोगों की गर्दनें काटता जा रहा था कि जब आखिर इस बूढ़े पर पहुंचा तो उधर से हलाकू खान ने कहा, रुक जाओ। जल्लाद रुक गया। अब हलाकू खान ने लीमू मुंह में चूसते हुए इस बूढ़े को कहा, बताओ अब तुम्हारा खुदा कहाँ गया, वो तुम्हें कैसे बचाएगा? क्योंकि तारीख में लिखा गया है कि हलाकू खान जितना जालिम तरीन था उतने ही अजीब इसके शौक थे। और लीमू खाते वक्त जैसे इसने हाथ इस बूढ़े की तरफ बढ़ाया तो घोड़ा डरा और घोड़ा भागने लगा। हलाकू खान खुद को संभाल ना सका और हलाकू खान भी घोड़े से गिर गया और हलाकू खान का पैर घोड़े की लगाम में फंस गया। अब घोड़ा डर के मारे भाग रहा था और हलाकू खान घसीटता हुआ जा रहा था। तमाम सिपाही पीछे दौड़ रहे थे कि हलाकू खान को बचाएं, लेकिन घोड़ा उस वक्त जाकर रुका जब हलाकू खान का सर चूर चूर हो चुका था। दोस्तों, देखिए अल्लाह ताला का करिश्मा के जिसने कई लाख मुसलमानों को कत्ल किया, वो एक घोड़े से घसीट घसीट कर अपने अंजाम को पहुंचा। बुराई की रस्सी जितनी भी लंबी हो जाए मुकम्मल कभी नहीं हो सकती, वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचती है। हर जालिम चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो या दुनिया के किसी भी ओहदे पर विराजमान क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन अपने किए गए हर अमल की सजा जरूर पाता है। इसी तरह का एक और वाकया है कि बगदाद की किसी रियासत में एक अब्दुल्ला बिन उमैर रहमदिल बादशाह रहा करता था, जो हुलिया बदल कर अपनी रियाया के हालात का पता लगाता था। एक दिन बादशाह अपने महल में उदास और परेशान बैठे हुए थे। इतने में इसका एक वजीर इसके पास आया। इसने देखा कि बादशाह उदास और परेशान है। बादशाह को इस हालत में देखकर वजीर को भी परेशानी लाहक हुई। वजीर ने बादशाह को सलाम किया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपनी सोचों में गुम था। फिर इस वजीर ने एक बार फिर बादशाह को सलाम किया, लेकिन बादशाह ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब तो वजीर बेहद परेशान हो गया। एक बार फिर वजीर ने बुलंद आवाज से सलाम किया और बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, आप इस कदर परेशान और खामोश क्यों हो? इस बार बादशाह होश की दुनिया में लौटा और वजीर को जवाब देकर कहने लगा कि कभी कभार मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि किसी से बात तक करने को भी दिल नहीं करता, और आज भी मेरी हालत कुछ इस तरह है। अब जब आप आ गए हो तो मुझे कोई ऐसी बात सुना दो ताकि मेरी तबीयत खुश हो जाए। वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको याद दिलाने के लिए ये अर्ज करता चलूं कि आज आपका गश्त का दिन है। इससे आपका दिल भी बहल जाएगा, और अगर आप मुनासिब समझे तो भेस बदल कर शहर में गश्त करने चलते हैं, और अगर आपका गश्त करने का मूड नहीं है तो किसी और दिन चलते हैं गश्त पर। फिर बादशाह कहने लगा, नहीं, हम आज ही गश्त पर चलेंगे। इस तरह फिर इन दोनों ने अपने लिबास तब्दील कर दिए और वो दोनों भेस बदल कर महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल कर शहर में गश्त लगाने के लिए चल पड़े। वो शहर की गली गली में गश्त करने लगे। रास्ते में इन्होंने एक नाबीना फकीर को देखा। दोनों इसकी तरफ चले गए। बादशाह ने एक सिक्का इस फकीर के हाथ में थमा दिया और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। फकीर इसका दामन पकड़ कर कहने लगा कि जिस तरह आपने हमदर्दी करते हुए मुझे एक सिक्का दिया, बिल्कुल इसी तरह मुझे मेरे मुंह पर एक थप्पड़ भी लगा लेना। बादशाह फकीर की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और इसे नाबीना फकीर समझकर फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन फकीर ने इसका दामन पकड़े रखा और बार बार इसरार करके कहने लगा कि मेरे मुंह पर आपने जरूर थप्पड़ लगाना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपना सिक्का वापस ले ले, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। बादशाह ने इसके मुंह पर हल्का सा थप्पड़ मारा और फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि इस फकीर ने ये जो हरकत की है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा ही राज छुपा है, वरना कौन ऐसे सिक्का लेने के बदले अपने मुंह पर थप्पड़ लगवाता है। इसने अपने वजीर से कहा कि वो जरूर इस राज का पता लगाएगा। चुनाचे बादशाह अपने वजीर से कहने लगा कि वो इस फकीर को जाके बता दे कि इसे सिक्का देने वाला बादशाह था, और बादशाह का ये हुक्म है कि वो कल दोपहर को इसके दरबार में हाजिर हो जाए। वजीर ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए उस फकीर को जाके ये बात बता दी। फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगे और फिर शहर की सारी गलियों और बाजारों में घूम फिर कर लोगों के मसाइल मालूम करने, और इन्होंने हुकूमती कारिंदों के हवाले से पूरे शहरियों से बातचीत भी की। बादशाह और उसका वजीर बहुत लंबा वक्त शहर में गुजारने के बाद इसी खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल हो गए। अगले दिन वही अंधा फकीर दोपहर को बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने फकीर से इसका नाम पूछा और इससे कहने लगा कि आपने वो सिक्का लेने के बदले मुझसे अपने मुंह पर थप्पड़ क्यों लगवाया, ये क्या माजरा है? ये बात सुनकर फकीर ने बड़े अदब से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपके इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त
मेरे लिए जो दौलत छोड़ी थी वो सारी दौलत मैंने फजूल खर्ची में उड़ा दी और फिर गरीब हो गया। फिर मेरी बीवी ने मुझे समझाया और इस तरह मैंने इसके कहने पर 2 ऊंट खरीद लिए और तिजारत करने लगा। मेरे काम में बहुत तेजी से तरक्की हुई और मैं बहुत जल्द अमीर हो गया। मेरे पास 80-90 ऊंट आ गए और मैं तिजारत में दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। एक दिन एक सौदागर का माल मैं बंदरगाह पर पहुंचाकर वापस शहर आ रहा था। मैं रास्ते में कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह बैठ गया और ऊंटों को चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दरवेश मेरे पास आकर बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम एक दूसरे से बातें करने लगे। एक दूसरे से वाकफियत होने के बाद हमने एक साथ खाना खाया। फिर वो दरवेश मुझसे कहने लगा, इस जगह के करीब पहाड़ी में इतना बड़ा खजाना छुपा है कि अगर तुम इन्हें अपने सारे ऊंटों पर भी लाद दो फिर भी इस खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। ये सुनकर मैं लालच में आ गया और मैंने उससे कहा कि मुझे भी ये खजाना दिखाइए। फिर दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हारे आधे ऊंटों के बदले तुम्हें वो खजाना दिखाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने 90 ऊंटों में से 40-45 ऊंट दरवेश को दे भी दूं तो 45 ऊंट भी मेरे पास बच जाएंगे, वो भी खजाने से भरे। ये 40 ऊंट मेरी कई पुश्तों के लिए काफी हैं और अगर 40 ऊंटों के बदले मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो यह सौदा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। चुनाचे ये सोचकर मैंने दरवेश की शर्त मान ली। फिर दरवेश ने मुझसे कहा कि आप ऊंट लेकर मेरे पीछे पीछे आते जाएं। थोड़ा दूर जाने के बाद एक पहाड़ी दर्रा नजर आया। यह दर्रा बहुत तंग था, लिहाजा मैंने ऊंटों को एक लाइन में करके इस दरवेश के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद दरवेश रुक कर कहने लगा कि अब हम खजाने तक पहुंच गए हैं, यहाँ ऊंटों को बिठा दो। मैंने ऊंटों को वहां बिठा दिया। फिर मैं इसके साथ आगे चल पड़ा। चंद कदम आगे चलकर इस दरवेश ने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और कुछ खुशबूदार सफूफ इस आग पर छिड़क कर कुछ पढ़ने लगा जिसे मैं नहीं समझ सका। कुछ लम्हों बाद जमीन अचानक लरजने लगी और एक जगह से जमीन फट गई। इसी फटी हुई जगह पर एक आलीशान दरवाजा नजर आया। दरवेश मुझे इशारा करके कहने लगा कि आ जाओ और फिर इस तरह हम दोनों इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। इस दरवाजे के अंदर जाकर मेरी आंखें तो हैरत से खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। इसके देखते ही मैं इसको लालचियों की तरह इस पर चिमटा और ये हीरे जवाहरात अपने ऊंटों पर लादना शुरू कर दिया। सारे ऊंट जब भर गए और हम जब वापस चलने लगे तो इन दरवेश ने एक संदूक से चांदी की एक डबिया निकाली और अपनी जेब में रख दी। फिर इसके बाद इसने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया जिसे मैं नहीं समझ सका। दरवाजे से निकलते ही जमीन लरजने लगी और खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इसी दर्रे में हम फिर पहुंच गए जहां से हम गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश अपने 40 ऊंटों को लेकर एक तरफ को चलने लगा और मैं अपने बाकी 40 ऊंट लेकर बगदाद की तरफ चल पड़ा। बादशाह सलामत चंद कदम आगे चलकर लालच ने मुझे घेर लिया और मैं सोचने लगा कि मैंने खामखा उसे 40 ऊंट दे दिए। वो तो एक दरवेश है, दौलत की आखिर उसे क्या जरूरत होगी। लिहाजा मैं वापस आकर उस दरवेश से कहने लगा कि आपको इतने खजाने से भरे ऊंटों की क्या जरूरत है। आप ऐसा करें कि सिर्फ 20 ऊंट रख ले, बाकी मुझे दे दें। इससे बात करके 20 ऊंट इससे वापस ले लिए। अब मेरे पास 60 ऊंट थे। फिर मैं आगे चलने लगा, लेकिन थोड़ा दूर जाकर मुझे फिर मेरे अंदरूनी लालच ने घेर लिया। लिहाजा मैं फिर वापस आकर दरवेश को गुस्से और डरा धमका कर इससे 10 ऊंट और ले लिए और इसी तरह मैंने इससे सारे ऊंट वापस ले लिए। फिर दरवेश खाली हाथ अपनी राह पर चला। इसके बाद फिर मुझे याद आया कि इसकी जेब में तो चांदी की एक डबिया थी, इसमें जरूर कोई खजाना छुपा है। लिहाजा मैं फिर वापस आकर उसे जलाल के लहजे में धमका कर उससे वो चांदी की डबिया लेने की कोशिश की। पहले तो इस दरवेश ने इनकार किया कि तुमने सब कुछ तो मुझसे ले लिया है, ये डबिया कम से कम मेरे पास रहने दो। इसकी ये बात सुनते ही फिर तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया कि जरूर इस डबिया में कोई बड़ा खजाना छुपा है। बस मैंने इससे वो डबिया छीन ली। मैंने जब इसे खोला तो इसमें सुरमा था। इस सुरमा का राज मैंने उससे पूछा तो इसने कहा कि यह सुरमा दाएं आंख में लगाने से जमीन के सारे खजाने दिख जाते हैं। तो मैंने फौरन वो सुरमा अपने दाएं आंख में लगा लिया और मुझे यकीनन जमीन के सारे खजाने नजर आने लगे। फिर इस दरवेश ने मुझसे कहा कि यह सुरमा अपनी बाएं आंख में नहीं लगाना वरना बहुत पछताओगे। मैं तो चौंके लालच में अंधा हो गया था। बस मैंने इसकी बात का यकीन नहीं किया और वह सुरमा अपनी बाएं आंख में भी लगा लिया। वो सुरमा लगाते ही मैं अंधा हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जोर जोर से चीखने लगा कि मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, पर मुझे मेरी बिनाई वापस कर दे। लेकिन अब मुझे मेरे लालच की सजा मिल चुकी थी। वो दरवेश मेरे सारे ऊंट और वो चांदी की डबिया लेकर वहां से चल पड़ा और मैं ठोकरें खाते हुए शहर में आ गया
اور بس اسی دن سے لے کر آج تک میں بھیک مانگ مانگ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ بس اب جو کوئی بھی مجھے کوئی رقم دیتا ہے تو میں اسے اپنے منہ پر تھپڑ ضرور لگواتا ہوں۔ بادشاہ فقیر کی دردناک کہانی سن کر کہنے لگا کہ تمہارا تو بہت ہی عبرتناک انجام ہوا ہے۔ یقیناً لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس فقیر سے کہنے لگا کہ آج سے شاہی خزانے سے ہر ماہ تم کو کچھ رقم معاوضے کی شکل میں ملتی رہے گی، جس سے تم اپنا گزر بسر کر لینا، لیکن تم آج کے بعد پھر کبھی بھیک نہ مانگنا۔ اور اس طرح وہ فقیر بادشاہ کو دعائیں دیتا ہوا دربار سے چلتا بنا۔